آپ سبھی تیار ہیں آج کے کلام کے لیے؟ آمین۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے وائس کی کتاب اور اس کا 8واں باب، اس کی 11ویں اور اس کی 12ویں 2 آیات مقدسہ کی تلاوت کریں گے۔ چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر باشدت مائل ہے۔ اور 12ویں ورس کہتی ہے، اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کامتے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رہے۔ مل کر بولیے گا آمین۔ آئیے بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈونٹ ڈسپائز دا ٹائم آف مرسی، رحم کے زمانے کی تحقیر مت کریں۔ آئیے عزیزو، یہاں پر جو ورس ہم نے پڑھی ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم بائبل کیا کہتی ہے؟ فوراً نہیں دیا جاتا۔ اور اس کے لیے یاد رکھنا خدا کا ایک ماسٹر ہمارے لیے پلان ہے، اور اس کی مرسی کا، اس کے فضل کا، اس کے رحم کا یہ ثبوت ہے کہ جب کوئی آدمی پاپ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً خدا کے عدل کو نہیں دیکھتا، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدل اس کا ہوتا نہیں ہے۔ خدا اس کے عدل کرنے میں بائبل کہتی تاخیر کرتا ہے، پر اسے یاد رکھنا منسوخ نہیں کرتا۔ خدا اپنے عدل کو التوا میں ڈال دیتا ہے، یعنی اسے آگے ملتوی کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ عدل اس کے لیے منسوخ ہو گیا ہے۔ بائبل اس کے لیے یہ سکھاتی ہے کہ جب ایک آدمی کا عدل فوراً نہیں ہوتا تو وہ خدا کے رحم کو سمجھنے کی بجائے بدی پر باشدت مائل رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جو میں نے نشہ کیا ہے، اسے لگتا ہے جو میں نے چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، یا اور کوئی ایسا کام کیا ہے، اس کا عدل یا اس کی سزا مجھے فوراً نہیں ملی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ خدا کے سامنے یہ چیز چھوٹی موٹی ہے یا معمولی سا کام ہے، اس لیے اس نے اسے خاطر میں نہیں رکھا۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزو، وائس کی کتاب 2 باتوں کا پتہ ضرور دیتی ہے۔ نمبر 1 میں انسان کے برے کام، اور نمبر 2 میں ہے خدا کی عدالت۔ لیکن اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے نا، وہ مرسی کا ہے، وہ گریس کا ہے، لیکن اسی کو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ہم جس زمانے میں عزیزو جی رہے ہیں، آپ سبھی جانتے ہو کہ یہ گریس کا زمانہ ہے۔ خدا تحمل کیے بیٹھا ہے، خدا اپنے آپ کو لوگوں کی ججمنٹ کے لیے کنٹرول کیے بیٹھا ہے، برداشت میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدل کرے گا نہیں۔ ہم بائبل میں کئی خطوں کے اندر یہ پڑھتے گئے، اس نے عدالت کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اس سے پہلے نہیں کرے گا۔ عدالت کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا باپ نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ہاتھ میں کیا ہے، اور یسوع مسیح ساری عدالتی اس نظام کو وہ اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کیے ہوئے کہ وقت آنے پر بائبل کہتی ہے وہ دنیا کا عدل کریں گے۔ عزیزو، یہاں یہ ورس کہتی ہے چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر باشدت مائل ہے۔ 12ویں ورس کہتی ہے، اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز بھی ہو تو بھی یقیناً میں جانتا ہوں انہی کا بھلا ہوگا۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ جو خدا ترس ہے، اور اس نمبر 2 میں اس کے حضور کامتے ہیں۔ شریر لوگوں کو اس سماج میں، شرارت میں ہم عروج پر دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ ان کا عدل کیوں نہیں ہو رہا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ ان کی عمر بھی دراز ہو اور وہ 100 بار بھی برائی کریں، لیکن انسان کو یہ سمجھ حاصل ہو کہ یقیناً خدا بھلا انہی کا کرے گا جو بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا ترس ہے۔ بولیے خدا
तरस गए, नंबर 2 में जो उसके हुजूर कांपते गए। अब याद रखें, अगर गुनाह को घर में या जीवन में पड़ा दी जाए तो सजा हमेशा दरवाजे पर मुंतजर रहती है। ऐसा याद रखिएगा, गुनाह को घर में या जीवन में पनाह दी जाए तो अदल जो है वो दरवाजे पर मुंतजर रहता है। काइन ने लिखा है अपने दिल में गुनाह को जगह दे दी थी, उसने प्लान बना लिया था मैं बस अपने भाई को कत्ल कर डालूंगा। तो ये सोचो, क्या अदल उसके दरवाजे पर मुंतजर नहीं था? आवाज भी आई, खुदा पहले तंबीह करता है, फिर खबरदार करता है और उसके बाद फिर नताइज का ऐलान कर देता है। तंबीह की खुदा ने काइन को, लेकिन वो बाज नहीं आया। और बाइबल कहती मलामत को हकीर जाना, जबकि खुदा ने खबरदार भी किया अपने भाई की तरह भला करे तो सरफराज होगा, लेकिन लिखा है उसने खुदा की इस तंबीह और मलामत को हकीर जाना। उसके बाद नताइज का ऐलान हुआ, अब तू जमीन पर खाना खराब रहेगा, आवारा फिरता रहेगा, जिन चीजों को तू हाथ लगाएगा वो तेरे लिए बेअसर होंगी। अजीजों याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस ये कहती है गुनाह और सजा ये दोनों करीब करीब हैं, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, ये दोनों लाजम मलजूम है, एक दूसरे के बगैर ये अधूरे हैं, एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। बाइबल का इतिहास गवाह है, जिन कौमों ने गुनाह को अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, अपने समाज में परवान चढ़ाया, उसे प्रमोट किया, उसे जगह दी, आगे हुआ क्या? आज वो कौमें अपना वजूद गवा चुकी हैं। सदोम अमोरा का हाल बाइबल बयान करती है, नूह के जमाने के लोगों का हाल बाइबल बयान करती है। ऐसे बेशुमार कलाम खुदा में और उसके बाद इस दुनिया की तारीख में शहादतें और वाकयात मौजूद हैं कि जिन लोगों ने, जिन घरों ने, जिन जीवनों ने गुनाह को अपनी जिंदगी में जगह दी या उसे बड़ा मैनेज करके रखा, उसे कवर करके रखा, हुआ क्या? जब नताइज निकले गए तो लोगों ने फिर उनके नताइज को देखा है। सो बाइबल अजीजों इस बात की तस्दीक करती है कि इंसान का गुनाह खुदा की जजमेंट को अट्रैक्ट करता है, उसे मतवज्जो करता है अपनी तरफ। जहां एक रास्तबाज की रास्तबाजी खुदा को मतवज्जो करती है, वहां एक गुनहगार की नाराजगी भी खुदा को अट्रैक्ट करती है। क्या बाइबल कहती है? कलाम खुदा ये साफ फरमाता है, खुदा उतरा ताकि उस जमाने के लोगों का हाल देखे, और लिखा है खुदा को वहां उनकी जुबानों में इख्तलाफ डालना पड़ा, क्योंकि देखा कि सब लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है। और खुदावन ने देखा कि उस बुर्ज में और इन लोगों के समाज और कल्चर में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, किसी की जिंदगी में मेरा कोई नाम नहीं है। और खुदावन ने वहां यूनिटी को बिखेर दिया इख्तलाफ की शक्ल में, और वो कौमें, लिखा है अजीजों, उनकी जुबानों में इख्तलाफ आया और वो बिखर गए, कोई किधर को कोई किधर को। इसलिए आज जिस कारोबार में हमें जवाल नजर आता है, आज जिस परिवार में हमें इख्तलाफ नजर आता है, या आज अजीजों हमारी जिन जिंदगियों के अंदर हमें अबतरी या सोचो हमें डिस्टर्बेंस दिखती है, उसके पीछे ये क्यों नहीं दिखता कि जिन चीजों को हमें निकालना चाहिए, जिन चीजों से हमें नफरत करनी चाहिए, हमने उन्हें कवर करके रखा हुआ है कि किसी को पता ना चले। लेकिन बाइबल ये साफ कहती है, जिस तरह किताब खुलती है तो सब कुछ सामने होता है, उसी तरह खुदा दिलों को जानता है। बोलिए आमीन। खुदा इरादों को जानता है, खुदा इंसान की सोचों से वाकिफ है। इसलिए अजीजों चाहिए कि इस रहम के जमाने में इस बात को समझें कि खुदा ने हमें यह बदलाव के लिए मौका अता किया है, ताकि यीशु मसीह के नाम से हम इस बदलाव को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए इनवाइट करें। अब सुनिए अजीजों, खुदा की जजमेंट का एक अलग सा तरीका है। हमारे तरीके में और उसके तरीके में यही तो फर्क है। जब कोई शरारत करता है, एक बार उसे हम आगाह करते हैं कि ये मत करो, दूसरी बार उसे तंबीह करते हैं, तीसरी बार
پھر سزا ہوتی ہے۔ خدا عزیزو، جب آپ یہ پڑھتے ہو کہ وہ سزاؤں کو التوا میں ڈالتا ہے، انہیں منسوخ تو نہیں کرتا لیکن انہیں آگے منتقل کر دیتا ہے، اب اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا سزا دینے کی نسبت رحم کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسے اس چیز میں خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور میں ان پر ایک دم سے رحم کروں۔ آپ یہ سوچو خدا نے کیا پلان بنایا تھا یونا کے لوگوں کے لیے، نینوا کے لوگوں کے لیے کیا پلان تھا نینوا کے لوگوں کے لیے کہ میں نے برباد کرنے کو ہوں، اور جس دن یونا کے پرچار کے بعد ان لوگوں نے توبہ کیا اور وہ لوگ یسوع مسیح میں خدا میں وہ لوگ مل گئے، اب خدا نے لکھا ہے، بائبل کہتی ہے ان کے لیے اپنے قانون کو بھی چینج کر دیا۔ اگرچہ خدا ارادے نہیں بدلتا، بائبل یہ کہتی ہے اس کے ارادے یکساں ہے، بس اس کے قوانین بدل جاتے ہیں۔ کوئی پاپ میں ہے تو عدل کا قوانین اس کے لیے قانون کام کرتا ہے، لیکن اگر وہی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اب رحم کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، چاہے وہ لکھا ہے 1000 اور یا کروڑوں گناہ کرنے کے بعد خدا کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو بس اس کی معافی جو ہے، اس کا معاف کرنا یا اس کی معافی مانگنا خدا کے رحم کو اپنے لیے متوجہ کر لیتا ہے۔ بولیے آمین۔ آئیے ذرا ایک ورس کو میرے ساتھ پڑھیے گا، خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب اور اس کا 34 چپٹر اور اس کی 6 ورس سے پڑھیں گے، میرے ساتھ دیکھیے ذرا۔ لکھا ہے اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اور وفا میں بولیے غنی ہے۔ شفقت اور وفا میں بولیے غنی ہے۔ عزیزو، پوری بائبل میں نا آپ کو یہ وہ حصہ نظر آتا ہے جہاں خدا اپنے لیے خود اعلان کر رہا ہے، اور کس بات کے لیے اعلان کر رہا ہے؟ وہ اپنی صفات کا، یاد رکھیے وہ اپنی خصوصیات کا چرچا کر رہا ہے قوموں کے اندر۔ خداون یہ پکارتا ہوا یعنی اعلان کرتا ہوا گزرا، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ خداون خداون خدائے رحیم، کے مطلب وہ مرسیفل خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، اور لکھا ہے مہربان اور قہر کرنے میں دھیما ہے۔ ایسا تو نہیں لکھا کہ وہ قہر کرتا ہی نہیں ہے، ایسا تو بائبل نہیں کہتی۔ بائبل یہ کہتی کہ وہ قہر کرتا ہے، پر کیسے کرتا ہے؟ دھیمے سے کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اس گناہ کا یہ عدل ہوا ہے، اسے اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن اس کا کام وہ اپنا پراپر کر دیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، خدا صبر سے کام لیتا ہے، یہ ورس اس بات کا واضح ثبوت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ایک پاپی کو بخش دے گا۔ خداون کا یاد رکھنا پلان یہ ہے کہ اس جیون میں رہتے ہوئے وہ جب توبہ کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے تو میری یا آپ کی 1000 دعاؤں سے بھی اس کے لیے سورگ کے راستے نہیں کھلتے۔ ایسا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ بولیے ایسا۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے خدا ہر کسی کو بدلنے کے لیے ماحول دیتا ہے، موقع دیتا ہے، وسائل دیتا ہے اور فضائل دیتا ہے، لیکن عزیزو اگر وہ شخص بدلنا نہ چاہے تو یہ پھر اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں، خدا ہماری ذمہ داریوں کے اندر مداخلت نہیں کرتا، وہ کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم ہی کو کرنا ہے۔ وہ کبھی اپنے فرشتے نہیں بھیجے گا کہ جاؤ اسے اٹھاؤ اور وہ آج چرچ جائے، اگر وہ چرچ نہ جائے تو اسے اتنے ڈنڈے مارو یا اس کے لیے ایسا کر دو ویسا کر دو، وہ نہیں کرتا، بس سافٹ آواز میں وہ بات کرتا ہے آج تجھے چرچ جانا چاہیے۔ اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں، میں کئیوں کو کہتا ہوں سنڈے کو چرچ ضرور آنا، تو آگے سے جواب پتا کیا آتا ہے؟ خدا دی مرضی ہوئی تے آپ آواں گے جی، خدا کی مرضی ہوئی تو خدا کی مرضی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب جگہوں پہ خدا کی مرضی چلتی ہے؟ بندے دی نہیں چلتی، بندے کی بھی چل جاتی ہے، اور دونوں کی مرضی مل جائے تب کام ہوتا ہے۔ خدا زبردستی، آپ یہ سوچو
अजीजो, बाइबल ये कहती है वो कुंडी या दरवाजा दस्तक देता है, वो डेवल की तरह नहीं है जो दीवार फलांग कर आता है। हमें किसी शैतान को इनविटेशन देना नहीं पड़ता या रोजा नहीं रखना पड़ता कि आज डेवल आए, ऐसा नहीं होता। वो दीवार फलांग कर आता है। लेकिन अगर खुदावन यीशु मसीह को दावत देनी हो तो फिर याद रखिएगा, हमें अपने दिल की कुंडी अंदर से खोलनी पड़ती है, जिसके लिए मैं और आप, हम सभी जिम्मेदार हैं। ऐसा है? बोलिए बोलिए, ऐसा है कि नहीं? आइए मेरे साथ एक और वर्स को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। जरा इसको वर्स को देखिएगा। और खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। अब बंदा बोले कि तौबा कर लो, तो बंदा क्या बोले? जिवें खुदा दी मर्जी हुई जी। तो यहां तो खुदा की मर्जी दिख रही है कि खुदा तो चाहता है, खुदा तो चाहता है कि वो शख्स बदल जाए, वो तौबा करे। मैं अजीजों एक बात जानता हूं, इस दुनिया में आने का सबका तरीका एक ही जैसा है, सब एक ही तरीके से आते, लेकिन वहां 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ वो हैं जो बदलते हैं और दुनिया को भी बदल देते हैं, अपने आप को बदलते हैं और दुनिया को भी बदल देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना आप ही नहीं बदला। अब मुझे बताओ, क्या खुदा उन तक खुशखबरी को लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा? आज गली मोहल्लों के अंदर इसलिए एवेंजलिज्म किया जा रहा है क्योंकि ये ग्रेस का जमाना है। यीशु मसीह के आने में अजीजों जो चीजें रुकावट हैं या जो चीजें रोके हुए ना, यीशु मसीह की आमद को सबसे पहली चीज उसमें यह है कि जब तक एक शख्स तक एवेंजलिज्म पहुंच ना जाए, एक शख्स गॉस्पेल को सुन ना ले, यीशु मसीह की आमद नहीं होगी। और दूसरी चीज, जब तक कलीसिया की गिनती पूरी ना हो जाए। अब ये दोनों बातें खुदा ही जानता है, दोनों बातें, क्योंकि हम तो अपनी गली मोहल्ले के लोगों को बस जानते हैं या अपने शहर के लोगों को। अब खुदा ही जानता है कि कलीसिया की कितनी गिनती होगी। लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है जब चर्च की गिनती पूरी हो जाएगी तो उसका रैप्चर हो जाएगा। और ये भी तब तक जब तक एक शख्स तक गॉस्पेल ना पहुंच जाए। हमेशा उन मुबश्शिरीन के लिए जरूर दुआ किया करें जो गैर अकवाम तक बाइबल मुकद्दस की उस नविश्ते पर काम कर रहे हैं, उनको गॉस्पेल सुनाने के लिए, और उनको खिलाफत का, उन्हें परेशानियों का, उन्हें मुसीबतों का, उन्हें मुख्तलिफ तरह के सताव का सहना उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, उन चीजों को सहना पड़ता है। लेकिन आपकी दुआ उनके रास्तों को आसान कर सकती है। बोलिए आमीन। इसलिए जरूर जब आप अपनी पर्सनल दुआ करते गए तो बगैर इम्तियाज किए, खुदावन जितने लोग बाइबल की इस प्रोफेसी पे काम कर रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में एवेंजलिज्म को लेके जा रहे हैं, मेरी दुआ उनके लिए है खुदा। और स्पेशली फिर जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें गाड़ी का, पेट्रोल का, उनके रहने खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, खुदा उन्हें भी बरकत दे। आमीन। तो ये हमारा हक बनता है, क्योंकि जहां हम दुआ का स्टडी करते हैं वहां शिफायती दुआ भी एक हिस्सा है, जिसमें हम ऐसे लोगों के लिए शिफायत करते हैं। बोलिए ऊंची आवाज में आमीन। अब खुदा के वादों में क्यों देर है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, आप बहन गवाह टल का आपको पता है ना, हम टल में पास्टर सजाद साहब के साथ बहुत टाइम पहले गए, तो वहां एक बूढ़ी औरत कहती है ये जड़ा कलाम तुसी आज सुनाया ना, ये मेरा बच्चा जड़ा अज बुढ़ा हो गया, इन्ना कुछ ही। तो उदो पादरी साहब एक आए सन ते कहंदे सन तौबा कर लो, यीशु आने वाला है। कहती ये देखो बच्चा बड़ा हो गया है और फिर इसके भी आगे बच्चे जवान हो गए, यीशु मसीह तो आए नहीं। अब यहां पर लिखा है, लोग कहते हैं उसके वादों में देर है, वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? अब इसके पीछे जो लॉजिक है उसे समझो ना। उसकी लॉजिक ये है, बाइबल कहती है वो चाहता है सब लोग बदल जाएं, सब लोग बदल जाएं। आज तो मैं कहता हूं साढ़े घर दे लोग हले सारे नहीं बदले, है ना। किसी की वाइफ चर्च आती है तो हस्बैंड नहीं आता, या फिर अगर दोनों आते हैं तो बच्चे कहीं और जाते हैं, या फिर जाते ही नहीं है ना। तो सच्ची तो बात यह है कि हमारे घर के लोगों को भी पूरे तौर पर अभी एवेंजलिज्म की जरूरत है। वो मैं करूंगा, वो आप करेंगे। बोलिए आमीन।
सो मैं ये कह रहा हूं, पत्रस का खत ये कहता है कि खुदावन खुदा अगर जजमेंट नहीं कर रहा या वो लोगों के लिए जाहिर नहीं हो रहा, उसके पीछे ये प्लान खुदा का है कि सब लोग बदल जाएं। अजीजों, खुदावन खुदा ने ये वादा किया है कि वो बदकारों की तारीख अपनी अदालत के साथ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ऐसा है? बोलिए। मिस्रियों का सोचो नामो निशान मिट गया, ना सदूम अमूरा का नामो निशान मिट गया। अजीजों, खुदा ये अपने अंदर इरादा रखता है कि मैं पापियों का वजूद खत्म कर दूंगा, इनकी तारीख मिटा दूंगा, क्योंकि माजी गवाह है। लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल कहती है बस वो तहम्मुल किए हुए है कि कोई और इसमें शामिल हो जाए, बस कोई और शख्स इसमें शामिल हो जाए। जब भी पाक की शादी जाती है तो एक बात का ऐलान किया जाता है, ये बची हुई रोटी और ये बचा हुआ शीरा इस बात का सबूत है कि बहुत सारे लोग अभी इसमें आना बाकी हैं, और दुआ ये की जाती है खुदा उनको भी लेकर आ, ताकि तेरे इस बदन में जो भी बचा हुआ है और ये शीरा जो बचा हुआ है इसमें वो लोग भी शरीक हों। तो कौन दुआ करेगा? पास्टर करेगा कि चर्च करेगा? इसमें याद रखना, शफायती दुआ में हम सबकी जिम्मेदारी है, कल्ला पादरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बोलिए आमीन। जिम्मेदारी हमारी होती है कि जिम्मेदारी मेरी होती है? बोलिए। जिम्मेदारी मेरी होती है, जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं ये कहता हूं चर्च की सफाई कर देना, तो बोलोगे हाँ जी हम कर देंगे, तो करनी किसी को ही नहीं, करनी किसी ने कोई नहीं, क्योंकि हर बंदा ये सोचेगा उसने कर देती होनी या उसने कर देनी। जब आप कहते हैं जी मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी, तो मैं उसके लिए जवाब दे हूं कि मैं फिर पूछने वाला हूं या आप में से कोई पूछने वाला है क्यों नहीं जो की थी सफाई, क्यों नहीं जो की थी? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी कभी हमारी नहीं होती, जिम्मेदारी मेरी होती। आपने उसे पर्सनल लेना है कि इसका जाती तौर पर मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए अजीजों, खुदावन खुदा जितना हमसे वफादार है ना, और जितना वो हमसे प्यार करता है, ये आयतें मिल के इस बात की दलील और इस बात का सबूत मुहैया करती हैं। आइए जरा यसाया 61 बाब को देखिए जरा, 61 और उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 आयात को पढ़ेंगे। अजीजों देखिए मेरे साथ जरा, हाँ, यसाया 61 और उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। अजीजों, पहली चीज तो यह है कि खुदावन खुदा जानबूझकर रहम के जमाने को दराज करता है, जानबूझकर फजल के जमाने को तवील करता है, ताकि लोगों को पूरा पूरा मौका मिल जाए। ठीक है, पूरा पूरा मौका मिल जाए। जी, इसको पढ़ेंगे। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो। दूसरी आयत कहती ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, सब गमगीनों को दलासा दूं। यीशु मसीह की आमद से पहले यहूदी हर सब्बत के दिन ये वाला हिस्सा पढ़ते थे, क्योंकि यहूदी 3 लोगों के इंतजार में थे। यूहन्ना पहले बाब की आपको 18-19 से ये मिलता है। वो एलिया के इंतजार में थे, वो नबी के जिसका इस्तिस्ना की किताब में जिक्र है उसके इंतजार में थे, और वो यीशु मसीह के इंतजार में थे। अब यीशु मसीह के अजीजों जात के मतलब यसाया ने यीशु की आमद से 700 साल पहले नबूवत की थी, और इस सहीफे को हर सब्बत के दिन पढ़ा जाता था। लूका 4 चैप्टर में आपको मिलता है, जब यीशु मसीह सब्बत के दिन हैकल में आए तो उसे यसाया का सहीफा दिया गया पढ़ने के लिए, और यीशु मसीह ने इसी सहीफे को पढ़ना शुरू किया और एंड पर कहा आज ये नबूवत पूरी हुई। और लोग आपस में हैरान हुए, ये अपने लिए ऐसे क्यों कहता है, क्योंकि जिसके लिए नबूवत थी वो तो ऑलरेडी उनके बीच में आ चुका था। अब सुनो अजीजों, यहां पर 2 चीजों पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। 12वीं दूसरी वर्ष में लिखा है, दूसरी आयत कहती है ताकि खुदावन के साले मकबूल का, इसका मतलब है एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड।
یعنی قبولیت کا جو خداوند کے لیے سال ہے، سال مقبول کا مطلب ہے قبولیت کا سال۔ اب قبولیت کے لیے کتنا وقت ہے بولیے؟ دراز وقت ہے کہ نہیں؟ دراز ہے نا، طویل ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا انتقام کے لیے 1 ڈے اس نے رکھا ہے، بس ایک دن میں انتقام ہو جائے گا۔ لیکن قبولیت کے لیے اس نے سال دیے گئے۔ عزیزو، یہاں یہ سایہ بھی اس بارے میں یہ نبوت کرتا ہے کہ آنے والا مسیحا جو ہوگا خدا کی روح اس کے اوپر ہے، اور پھر وہ خوشخبری سنانا شروع کرے گا، شکستہ دلوں کو تسلی دے گا، قیدیوں کو رہائی، اسیروں کو آزادی کا اعلان۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ خداوند کے سال مقبول کی۔ سال مقبول دراصل نئے عہد نامہ کے مطابق یسوع مسیح خود ہے۔ آپ پرانے عہد نامہ میں یوبلی کا سال پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ایک پرانے عہد نامہ میں یوبلی کا سال ہے اور نئے عہد نامہ میں سال مقبول ہے۔ یوبلی کا مطلب کہ 49 سال تک قیدی تمہارے ہاں قیدی ہے، غلام ہے، لیکن جیسے 50واں سال شروع ہوگا وہ آزاد ہے، پھر اسے کوئی قید نہیں کر سکتا، اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ دراصل شیڈو میں یعنی پرانا عہد نامہ وہاں سال یوبلی ہے، اور نیا عہد نامہ جسے عزیزو ریالٹی کہا جاتا ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں آپ کو سال مقبول ملتا ہے۔ وہاں یسوع مسیح میں آنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ڈیلیور ہے، پھر وہ چھٹکارا پا جاتا ہے، وہ خلاصی حاصل کر جاتا ہے ان کاموں سے جو ماضی میں اس نے کیے۔ اب حال کے جو ہیں یا تو وہ راستی کے کرتا رہے یا گر جائے، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے، خداوند نے پچھلی ورسز کو بھی دھیان میں رکھو، وہاں وہ ورسز بھی کہتی ہیں وہ عدل نہیں کرتا، اسے تاخیر میں رکھتا ہے۔ لیکن جب لوگ ایسا دیکھتے ہیں تو باشدت کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہ پر مائل رہتے ہیں، نشہ کرتے رہتے ہیں، نشیڑی اور نشوں میں جاتا ہے، زناکار اور زناکاری میں جاتا ہے، پاپ کرنے والا اور پاپ میں پھنستا اور دھستا جاتا ہے، جبکہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اسی زندگی میں تیرے لیے سب کچھ ہے، اس جیون کے بعد پھر تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، ایک وہ شخص جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا، اور وہ شخص جو ایک بار پیدا ہوا اور اس نے پھر یسوع مسیح سے پیدا ہونے کے بعد 2 ولادتیں حاصل کر لی ہیں، وہ صرف ایک بار مرے گا، صرف جسمانی موت۔ ایک وہ آدمی جو صرف ماں سے پیدا ہوا، اس نے یسوع مسیح میں سے ہو کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کیا، اب وہ کیا کرے گا؟ جسم کی موت بھی اور ابدی آگ کی موت بھی۔ اور ایک وہ شخص جس کو خدا نے اس کی جسمانی ولادت کے بعد اس کو موقع دیا، ٹھیک ہے، اس سے بات کی، اور اس شخص نے اس خوشخبری کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اور کہا، خداوند میں تجھے اپنی زندگی میں لیتا ہوں اور آنے والا وقت تیرے ساتھ گزارنے کے لیے وعدہ کرتا ہوں، اس کا آنے والا وقت بھی سیکیور ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے عزیزو، جب خدا انسان کی قبولیت کے لیے تحمل کیے بیٹھا ہے تو اس کے لیے اگر انسان خود لاپرواہ اور غافل ہے تو اس کے لیے یاد رکھنا، پھر اسے اپنی لاپرواہی اور اپنی غفلت کے لیے عزیزو یاد رکھنا جواب دہ ہونا ہے، اسے حساب کتاب دینا پڑے گا اس کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں برے کام کرنے والے مسلسل برے کاموں میں بڑھتے جاتے ہیں۔ جو سفر انہوں نے ہزاروں سے شروع کیا تھا، اب وہ سفر کروڑوں تک جا پہنچا ہے۔ یعنی وہ سفر جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے، میں کہتا ہوں چوری چکاری سے شروع کیا تھا، اب وہ سفر بڑے ڈاکوؤں کے بننے میں وہ عزیزو وہاں تک جا پہنچا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب گناہ کو یا کسی بھی پاپ کو باڈی کے اندر کسی حصے میں جگہ دی جائے تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر اس حصے کو فتح کرنے کے بعد پھر اگلے حصے کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جو ممالک جب آپس میں لڑتے ہیں تو ایک جو غالب آتا ہے سب سے پہلے اس کے کسی شہر میں اپنی چیزوں کو شفٹ کرتا ہے، اسلحے کو، پھر وہاں سے وہ آگے لڑنا جاری رکھتا ہے۔ تو باڈی میں بھی ایسا ہی ہے، جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اب وہ سمجھ لے
कि मेरा ये वाला हिस्सा डेविल के हाथों फतह हो चुका है, अब गुनाह किसी कोने में पड़ा थोड़ी रहेगा, वो अपना वजूद आगे बढ़ाएगा और आगे वो अपनी फतूहात को जारी रखेगा। आइए जरा मेरे साथ देखिए अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब उसकी 7 आयत को देखते हैं। इसको 21वां बाब 7वीं वर्ष में लिखा है, शरीर क्यों जीते रहते हैं, उम्र रसीदा होते हैं, बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं, उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। और 9 आयत कहती कि उनके घर डर से महफूज हैं, खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। एक और वर्ष को 20 की 5 को पढ़ेंगे। इन दोनों आयात का आपस में मुआजना जरूर करिएगा। 20 की 5 में लिखा है कि शरीरों की फतह चंद रोजा है। पहली वर्ष में वो ये कहता है, मैं तज्जुब करता हूं वो बड़ा दराज जीते हैं। फिर वो कहता है वो कूद पाते जाते हैं, वो जबरदस्त होते जाते हैं। लेकिन 20 की 5 में वो कहता है शरीरों की फतह, उसने कहा चंद रोजा है, और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो, लिखा है बुलंद हो जाए और उसका सर बादलों तक पहुंचे। 7 वर्ष कहती है तो भी वो अपने ही फुजले की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। इन दोनों वर्सेस में पहली वर्ष में वो अपने आप से सवाल करता है, और दूसरी वर्ष में हमें यह समझ आती है कि खुदा उसके सवाल का उसे जवाब दे चुका है। क्योंकि आज भी समाज में ये देखोगे जुल्म करने वालों की रस्सी ढीली है, जुल्म करता जाता है ना, और जिस पर ज्यादती होती है वो ज्यादती सहता जाता है। शरीर जोरावर होता है, दराज उम्र जीता है, वो कदावर होता है, वो खुशहाली में दिन जीता है। लेकिन फिर आगे हम अय्यूब की मार्फत 20 की 5 में ये पढ़ लेते हैं, उनका वो जलाल, उनकी वो मैं कहता हूं कामयाबी, और उनका वो सारा कामयाबियों का सेहरा, कलाम कहता है चंद रोजा है। ऐसा है बोलिए। और वो कहता है उनका सर बादलों में जा पहुंचे, इतनी इकबालमंदी हो, लेकिन उसने कहा वो हमेशा ऐसे हैं जैसे वो अपना फुजला है उनका उसी के जैसे नापाक और चंद रोजा हैं। किसी बच्चे ने कहा, ऐ बाप मेरी पतंग को इतना ऊपर जाना चाहिए, मैं चाहता हूं बादलों तक जा पहुंचे और चरखनी से इसकी डोर काट दो। बाप ने ऐसा ही किया, हवा बादलों में उसे तो ले तो गई, सारी पतंगों से उसकी पतंग ऊपर थी, लेकिन कुछ लम्हे बाद कुछ और ही मंजर देखने को मिला कि वो अगले गांव में जाके और इनकी पतंगे तब भी उड़ रही थी। इसका मतलब यह है कि शरीर की पतंग या शरीर की कामयाबी दूसरों से अफजल हो सकती है, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि वो परमानेंट है, वो गिर जाएगी, वो गिर जाएगी। बोलिए आमीन। तो रास्तबाज को दूसरों पर जो उनके हम असर हैं, जो उनके कॉलीग्स हैं, और वो उनको पता है ये झूठ भी बोलता है, ये चोरी भी करता है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा खुशहाल है, उन पर रश्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कामों का जल्द रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि ये वर्सेस जो है ना अजीजों, ये टोटली इंसान का अहाता करती हैं, उनके लिए प्रोफेसी देती हैं, और उसको मलामत के साथ साथ उसे खबरदार भी करती हैं कि अपने नताइज को बदल दे। आमीन। अपने नताइज को बदलना है तो अपने कामों को बदलना होगा। हम अपने फैसलों से अपने काम बदलते हैं, हमारे कामों में इतनी पावर है, हमारा आने वाला वक्त वो बदल सकते हैं। बोलिए आमीन। आइए जरा एक नबूवत को पढ़ेंगे मेरे साथ। देखिए मरकस 13 की 1 से 2 में पढ़िए जरा। मरकस की अंजील उसका 13वां बाप उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है मरकस और उसका 13वां बाप उसकी 1 से 2। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। दूसरी आयत कहती है यीशु ने उससे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। यीशु मसीह
अपने अंदर मुकाशफाती रूह के वसीले से यरूशलेम का आने वाला मंजर देख रहे हैं और फिर बयान भी कर रहे हैं कि तुम अभी यरूशलेम की खुशहाली को देख रहे हो, लेकिन मैं यरूशलेम के उजाड़ को और उसकी बर्बादी को देख रहा हूं, क्योंकि वो यरूशलेम के हाल पर रोया था। क्योंकि वो जो देख रहा था वो दूसरे लोग नहीं देख रहे थे। इसलिए एक स्पिरिचुअल इंसान जब उसकी आईज ओपन होती है तो याद रखना वो उन चीजों को देख सकता है जो आम आदमी देख नहीं सकता। बोलिए आमीन। अजीजो, मरकज की अंजील का ये 13वां जो चैप्टर है ना, याद रखना यरूशलेम की बर्बादी पर ये नबुवती चैप्टर है। और याद रखना ये उस वक्त का है जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे। और यरूशलेम को जाने का मतलब ये है उनके सताव का, उनकी मुश्किलात का और उनके मसलूब होने का वक्त शुरू हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा मुझ पर मत रोवो, अपने बच्चों के लिए और यरूशलेम के लिए, क्योंकि इसका आने वाला वक्त जो है ना वो ठीक नहीं है। अजीजों, मसीह खुदावन ने ऐसा क्यों कहा कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा? यरूशलेम के लोगों का उस जमाने का जो हाल था ना, रूहानी एतबार से वो टोटली मजहबी लाइफ जी रहे थे। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, खुदावन यीशु मसीह मजहबी बनाने आए, रिलीजियस बनाने आए कि स्पिरिचुअल बनाने आए? वो हमें स्पिरिचुअल बनाने के लिए आए, क्योंकि रिलीजियस लोग तो ऑलरेडी उसके पास बथेरे थे, है ना। वो हाथ धो के तहारतें करके अपनी मजहबी रसूमात के पाबंद हैं, लेकिन हीलिंग नहीं होती, प्रोफेसी नहीं होती, मेरिकल्स नहीं होते, डिलीवरेंस नहीं होती। और ये चीजें होती हैं ईमान लाने वालों के बीच में, और ईमान का मजहबी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। ईमान का दरअसल रूहानी जिंदगी के साथ गहरा वास्ता है। बोलिए आमीन। अब सुनिए अजीजों, उस वक्त हैकल के जो मालिक थे ना, वो सदुकी और वो फक्की थे या सरदार काहिन थे, ये हैकल के मालिक थे। और यहां ये पढ़ा जाता है कि उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया। ऐसा है? बोलिए। यीशु मसीह के बारे में हर सबक प्रचार किया जा रहा है। यीशु मसीह आए, उन्होंने पहचान लिया, पहचाना उन्होंने कहा ऐ हकीम पहले अपने आप को पहचान। यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे मुतालिक ये कहोगे कि जब तू कहता है ये नबूवत तो पूरी हुई, तो ऐ हकीम पहले अपने आप को पहचान। उन्होंने यीशु मसीह की हकारत की, तभी तो यीशु ने कहा था मैं अपनों के घर आया और अपनों ने मुझे कबूल न किया। अब से इब्ने आदम गैर अकवाम की तरफ जाता है। अजीजों, उन्होंने मसीह को रद्द किया और यही दरअसल उनकी सजा की वजह बना। यही पाप, मैंने कहा, उनके लिए जजमेंट की वजह बना। और आने वाले वक्त में खुदावन ने उनके लिए लिखा है, अदल को प्लान किए हुए था और वो इसको नहीं जानते थे। अजीजों, यरूशलेम की बर्बादी के मुतल्लिक ये कहा जाता है, स्टडी बताती है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद तकरीबन 36 से 37 साल के बाद, कहा जाता है सन 70 ईस्वी में रोमी फौजों ने यरूशलेम पर अटैक किया, उसे घेर लिया। और बाइबल उस प्रोफेसी को तब पूरा हुए दिखाती है। लिखा यरूशलेम का मुहासरा किया गया और रोमी उस फौज का जो जर्नैल था वो टाइटस यानी तीतस नाम का शख्स था, और यीशु मसीह की नबूवत उसके हाथों पूरी हुई। उसने यरूशलेम को घेरा और बाइबल कहती है, बल्कि स्टडी इसके बारे में गवाह है, उसने यरूशलेम को खंडरात की शक्ल में बदल दिया, उजाड़ दिया यरूशलेम को। और यहां तक कि वो सुलेमानी हैकल उसे भी जला डाला। आप जानते हो उसके अंदर कितना सोना और कीमती पत्थर और चीजें ऐसी कीमती खुदा की शान के लिए लगाई गई थी, लेकिन उसे जब जलाया गया, उस हैकल को जब बर्बाद किया गया, आग लगने से वो सारा सोना पिघलकर उसके पत्थरों की दरारों में चला गया। और तब ये नबूवत तो पूरी हुई कि उस जर्नैल ने कहा पत्थर से पत्थर हटाओ और सोना और जितने कीमती चीजें हैं वो दरारों से निकालो। तब यीशु मसीह ने कहा था इस हैकल पर ये सब कुछ होने वाला है।
اور یہ سوچو عزیزو جو ججمنٹ ان کی ہوئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اگرچہ ان کے لیے تحمل کیے بیٹھا تھا اور خداوند نے یہ دیکھا کہ یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، لیکن یہ گمراہی میں گئے، یہ بیرا روی میں گئے، اور یسوع مسیح کو یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کو ان کے بیچ میں بھیجا اور اس نے آ کر ان کے بیچ میں پرچار کیا، ان کے لوگوں کو چنگا کیا، ان کے لیے نجات کے راستے کھولے۔ لیکن افسوس یہ ہے ایمان لانے کی بجائے ان لوگوں نے یسوع مسیح کو رد کیا، یسوع مسیح کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ بائبل یہ کہتی چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا۔ یہ سوچو یسوع مسیح نے جو نبوت کی تھی اسے 36 سے 37 سال بعد یروشلم کو اجاڑ دیا گیا اور یسوع مسیح کی تب یہ نبوت تو پوری ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے وائز 8 کی 11 اور 12 کیا ان قوموں کا ہی یہ آیت جو ہے احاطہ کرتی ہے، انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ آج کی کلیسیاؤں سے، آج کی مسیحی قوم سے ان آیات کا کچھ واسطہ نہیں ہے؟ عزیزو پاک رو یاد رکھنا، جس کلام کو رقم بند اس نے کروایا ہے نا، یہ کلام ہر زمانے کے لیے بات کرتا ہے۔ بولیے آمین۔ ہر زمانے کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر اہل لغت کے لیے یہ کلام بات کرتا ہے۔ اور عزیزو عقل مند اور میں یہ کہتا ہوں بابرکت وہ لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سن کر اپنے فیصلوں سے اپنے کام اور پھر اپنے کاموں کو موقع دیتے ہیں کیونکہ آنے والا وہ وقت بدل دے۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ سو عزیزو یاد رکھیے گا، یہ ممکن ہے آج ایک وہ شخص جو پاپ کرے اور کل وہ نئی گاڑی لے لے، اس میں کچھ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ آج ایک آدمی چرچ میں چوری کرے اور کل وہ ایک پلاٹ لے لے، اس میں کچھ تعجب کرنے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پھر بھی بدلنے کا خدا موقع دیتا ہے، اسے بدلنے کا بولیے موقع دیتا ہے۔ جب انسان کے گناہ پر سزا کا فوراً حکم نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کے صبر کو اگنور کر رہا ہے، خدا کے تحمل کو وہ حقیر جان رہا ہے اور اپنے کاموں سے اس خدا کے فضل کو وہ گالی دے رہا ہے۔ لیکن عزیزو جو حال یروشلم کا ہوا، جو حال ان قوموں کا ہوا، کیا وہ آج کے لوگوں کا نہیں ہوگا؟ عزیزو یاد رکھیں، کہا یہ جاتا ہے وقت گناہ کے جرم کو مٹا نہیں دیتا، وقت گناہ کے جرم کو مٹا نہیں دیتا۔ اگر سزا ملنے میں تاخیر ہو تو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ خدا میرے گناہ کو بھول گیا ہے، یہ امید نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ایسی کمپنیاں ہیں 6 مہینے بعد اکٹھی سیلری دیتی ہیں، کچھ ایسی کمپنیاں جو ہر مہینے سیلری دیتی ہیں۔ اب یہاں پر جب خدا بات کر رہا ہے کہ میں عدل تو کروں گا لیکن بعد میں پہلے تمہیں پورا موقع دوں گا، اس کا مطلب ہے اس کی سزائیں ملیں گی اس کمپنی کے جیسے جو ایک ساتھ یک مشت سے سیلری دے رکھی ہے، خدا بھی سزاؤں کو پھر یک مشت دیتا ہے۔ ایسا ہے؟ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ آئیے ایک آخری ورس کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھنا۔ تھینک یو جیسس کرائسٹ، ہاللیلویا۔ آئیے ذرا پڑھیے میرے ساتھ عزیزو کلام خدا میں سے، اس کو دیکھیے یسایہ 26:10 کو ذرا دیکھیے، یسایہ 26:10 کو آخری ورس ہے اس موضوع کے لیے۔ دیکھیے یسایہ 26:10 کلام خدا کیا کہتا ہے۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ یسایہ 26:10 ورس پڑھیے بہن شازیہ اس کو۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے اور وہ صداقت نہ سیکھے گا، راستے کے ملک میں ناراضگی کرے گا ہاں، اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ خداوند کی عظمت کو، اب ہر چند کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی خدا اس پر مہربانی کر دے، ہے نا، کتنا بھی اسے موقع دے دے۔ میں ایسے لوگوں کا حال ایسے بیان کرتا ہوں، وہ لوگ جو لوہے کا کام کرتے ہیں نا، سخت کام، اور تھوڑا چلا کے ان کی یہاں چنڈی بن جاتی ہے نا، اسے میں کہتا ہوں بلیڈ سے چھری سے بھی کاٹو نا باڈی کو درد نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا۔
आपको नहीं लगता कि इस समाज में ऐसे लोग भी हैं सुन सुन के सुन्नी हो गए हैं, सुन्नी हो गए हैं। और मैं कहता हूं रेवलेशन इतना गहरा भी हो, इतना जोशीला भी हो, असर नहीं करता, असर नहीं करता। अगर वो अपने पड़ोसी को देखे शायद वो रो रो कर उसको सुनता हो और ये बंदा बोले एक वो बहुत ही एक्टर है भाई, मैनू तो कुछ नहीं हो रहा। अब उसे हो रहा है इसलिए कि उसका वो जख्म हील होने के लायक है। टेंचर कहां लगता है? टेंचर कहां लगता है बोलिए? जहां जख्म हील होने के लायक है। और वो जिस्म का हिस्सा जो मर जाता है ना, टेंचर लाओ तो उनको जो है और तेरी बॉडी ना बस उंजी होगी हुन कि तू मर चुका है, तुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहां लग रहा है, वहां लग रहा है और वो अपनी हालत को देख रहा है। क्योंकि कलाम अजीजों चापलूसी नहीं करता है। मैं जिस खुदा को मानता हूं ना, वो मीठी बातें नहीं करता, क्योंकि इतिहास गवाह है मीठे में कीड़ा पड़ता है लेकिन कड़वी चीजों में कभी कीड़ा नहीं देखा गया। लेकिन वो कड़वी चीजें कल को हमारी जिंदगी को आसान कर देती है। बोलिए आमीन। अब बाइबल क्या कहती है? हर चंद शरीर पर मेहरबानी की जाए। शरीर आदमी पर जितना भी खुदा मैं कहता हूं मेहरबान हो जाए, पर वो क्या करता है? वो सदाकत सीखता ही नहीं, वो सीखता ही नहीं है। और नहीं जी ये साड़ी मिशन की गल थोड़ी हुण है ना, साड़ी मिशन ही नहीं सिखांदी, साडे पादरी साहब ही नहीं सिखाते। मैं एक चीज आपको कहता हूं, इस बाइबल से ऊपर जो आपके हाथ में है, कोई मर्द खुदा इससे ऊपर नहीं है, कोई मिशन इससे ऊपर नहीं है ना। और जो ये कहती है वो फॉलो करना हर एक मसीही का फर्ज है, वो किसी भी मिशन से तल्लक रखता हो। इसलिए अजीजों बाइबल ये कहती है रास्ती के मुल्क में ना रास्ती करेगा, यानी वो रास्ती के मुल्क में भी। मुझे बताओ आदम जिस माहौल में था, ये सोचो वहां क्या अमन नहीं था, क्या सुकून नहीं था, क्या वहां बरकत नहीं थी, नेमतें नहीं थी, खुदा की हजूरी नहीं थी, तो वहां नाराजगी भी तो आई। तो इसमें तज्जुब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रास्तबाज परिवार है तो एक शरीर बच्चा पैदा हो जाता है। बाइबल के कई खानदानों में ऐसा था, है ना। एक ही परिवार में बाइबल एसो को बेदीन कहती है, उसे हरामकार भी कहती है ना। और उसी परिवार का एक बच्चा याकूब है। तो इसमें तज्जुब की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम ये कहता है रास्ती के मुल्क में नाराजगी करेगा और वो खुदावन को अजमत नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने अपने लिए हलाकत को खुद से सेट कर लिया है। लेकिन मैं आपको अजीजों कहना चाहता हूं, अब में से जितने भी यहां मौजूद हैं, अगर हम अपने कामों को नहीं बदलते, अपनी सोचों को, अपने इरादों को, अपने फैसलों को नहीं बदलते, तो याद रखिएगा हम खुद अपनी हलाकत के जिम्मेदार हैं। मुझे ये बताइए, अगर हम में से कोई ऐसा शख्स है, उसे बाहर से कोई आकर मारे, हम सारे पकड़कर उसे बचाएंगे कि नहीं? बचा लेंगे। तो अगर वो बंदा अपने आप को खुद मारे, उसे कौन बचाएगा फिर? उसे कोई नहीं। तो आपको नहीं लगता इस समाज में हजारों सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुद मार रहे हैं, खुद मार रहे हैं, और उनके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। सो आइए अजीजों, आज के कलाम को समझिए। इस रहम के जमाने का, इस रहम के जमाने का छोड़ दीजिए, इस रहम के जमाने का अजीजों, इसे हकीर मत जानिए, इसकी कदर कीजिए। हम में से हजारों ऐसे लोग हैं ना, जिसे 26 में हम दाखिल होने वाले, उनको वो नसीब ही नहीं हुआ। हमारे काम बहुत अच्छे हैं जो हम 26 देखने वाले हैं। ऐसा है क्या? हमारे कामों की वजह से ऐसा है कि खुदा के फजल की वजह से ऐसा है? खुदा के फजल की वजह से ऐसा है, रहम की वजह से ऐसा है। तो आइए फिर उसके रहम को दावत दीजिए कि खुदावन सच में तू मेरी हलाकत नहीं चाहता। आइए अजीजों, आज के मैसेज को कबूल करेंगे। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए अजीजों, अगर उसके वादों में देर नहीं है, लेकिन एक उसके वादों में देर होने की वजह है कि जनाब वो तहम्मुल किए बैठा है कि कोई भी हलाक ना हो। अपनी बीवी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों कारब के लिए आओ रहम की दुआ करो। जो सल्वेशन नहीं पाए हुए उन्हें याद करो, खुदा जो तजर्बा तूने मुझे दिया है वो मेरे परिवार को भी हासिल हो जाए। हालेलुया।
तेरा शुक्र हो, हालेलुया। आइए सभी अपने लब खोलिए, दुआ शुरू कीजिए।